Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to start chapter 7, Structure Organization in Animals, class 11th. In preceding chapter you came across large varieties of organisms, both unicellular and multicellular, of the animal kingdom. In unicellular organisms, all functions like digestion, respiration and reproduction are performed by single cell. In complex body of multicellular animals, the same basic functions are carried out by different groups of cells in a well organized manner. हम लोग ने चैप्टर्स में क्या पढ़ा कि जो हमारी ऑर्गेनिज्म की लार्ज वैरायटी वो मल्टी सेलर यूनिसेलर बोथ है एनिमल किंगडम में. यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में जितने भी फंक्शन होते हैं, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, एक सेल फॉर्म करता है. और जो हमारी कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है, मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं, उसमें जो बेसिक फंक्शन होते हैं वो डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म करते हैं वेल ऑर्गेनाइज मैनर में. द बॉडी ऑफ अ सिंपल organism like hydra is made up of different type of cells and number of cells in each type can be 1000. एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है जैसे कि हाइड्रा, वो बहुत सारी डिफरेंट सेल्स से बना हुआ है और जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो अराउंड 1000 हो सकते हैं. ईच टाइप 1000 तरीके के हो सकते हैं. The human body is composed of billion of cells to perform various functions. Human body billion of cells की बनी है जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती है. How do these cells in the body works together? In multicellular organism, a group of similar cells along with intercellular substances perform a specific function. Such organization is called tissue. Multicellular में organism क्या होता है? Group of similar cell along with intercellular substances एक specific function perform करते हैं. उस organization को हम लोग कहते हैं tissue. You may be surprised to know that all complex tissue consists of only 4 basic types of cells. These tissue are organized in a specific proportion and pattern to form an organ like stomach, lung and heart and kidney. When two or more organs perform a common function by physical and or chemical interaction, they together form organ system. जब दो और organ एक साथ कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कोई भी फिजिकल या केमिकल इंट्रैक्शन, उसको मिला के हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम. एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सेट्रा. Cell tissue organs and organ system split up the work in a way that exhibit division of labor and contribute to the survival of the body as whole. Cell tissue organ system अपना अपना काम बांट लेते हैं as a division of labor and contribute to the survival of the body as a whole. अब हम लोग आते हैं एनिमल टिश्यू. द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मे वेरी अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, देयरफॉर टिश्यूज आर डिफरेंट एंड आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप: epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and neural tissue. Epithelial tissue. We commonly refer to an epithelial tissue as epithelium. The tissue has a free surface which faces either a body fluid or the outside environment and thus provide a covering or a lining for some part of the body. एपिथेलियल टिश्यू को मेनली हम लोग एपिथेलियम कहते हैं. इस टिश्यू के पास फ्री सरफेस होता है विच फेसेस आइदर अ बॉडी फ्लूइड, या तो वो बॉडी फ्लूइड को फेस करता है या फिर आउटसाइड इन्वायरमेंट. इसीलिए ये हम लोगों को एक कवरिंग और लाइनिंग प्रोवाइड करता है हमारे सम पार्ट ऑफ द बॉडी पे. द सेल्स आर कम्पैक्टली पैक्ड विद लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स. इसके सेल्स कैसे होते हैं? कम्पैक्टली पैक्ड होते हैं और लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंस होती है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल एंड कंपाउंड. Simple epithelium is composed of single layer of cells and function as a lining for body cavities, ducts and tubes. सिंपल एपिथेलियम किससे बना होता है? सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना होता है जो कि फंक्शन करता है लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटी, डक्ट्स एंड ट्यूब. द कंपाउंड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ 2 or more cells layers and has protective function as it does in our skin. कंपाउंड एपिथेलियम 2 और मोर सेल की लेयर से बनी होती है. वो प्रोटेक्टिव फंक्शन एज अ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है जैसे कि हमारा स्किन प्रोवाइड करता है. ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, सिंपल एपिथेलियम इज फर्दर डिवाइडेड टू स्क्वैमस सिंपल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल सिंपल एपिथेलियम एंड कॉलमनर सिंपल एपिथेलियम.
The squamous epithelium is made up of a single layer of flattened cell with irregular boundaries. They are found in wall of blood vessel and air sacs of lungs and are involved in function like forming a diffusion boundary. Simple epithelium, स्क्वैमस एपिथेलियम एक सिंगल थिन लेयर की बनी होती है, फ्लैटेंड सेल होते हैं, इरेगुलर बाउंड्रीज होती है और ये कहाँ मिलती है? दे आर फाउंड इन वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, एयर स्लैग्स ऑफ लंग्स एंड आर इन्वॉल्व्ड इन फंक्शन लाइक फॉर्मिंग अ डिफ्यूजन बाउंड्री. अब द क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज कंपोज ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल. इसमें कैसे सेल्स होते हैं? सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स. This is commonly found in duct of gland and tubular parts of nephron and kidney as its main function are secretion and absorption. ये कहाँ हम लोग को mainly मिलते हैं? Ducts of glands में, tubular parts of nephron में, kidneys में, and its main function is secretion and absorption. इसका main function क्या है? Secretion and absorption. The epithelium of PCT of nephron in the kidney has microvilli. Epithelium जो पीसीटी में एपिथेलियम होता है उसमें माइक्रोवेलाई होते हैं. माइक्रोवेलाई क्यों होते हैं? क्योंकि वो सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं. The columnar epithelium is composed of a single layer of tall and slender cells. Their nuclei are located at the base. जो columnar epithelium होती है वो tall और slender cells से बनी होती है. इनके जो nuclei होते हैं वो base में होते हैं. Free surface may have microvilli. They found in the lining of stomach and intestine and helps in secretion and absorption. If the columnar or cuboidal cell bear cilia on their surface, they are called ciliated epithelium. कॉलुमनर एपिथेलियम कैसी होती है? सिंगल लेयर की बनी होती है, टॉल होती है, स्लेंडर सेल्स होते हैं उसमें, इनके न्यूक्लियर बेस पे लोकेटेड होते हैं. फ्री सरफेस में हैव माइक्रोवेलाई और ये कहाँ मिलते हैं? देखने को मिलते हैं हम लोग को लाइनिंग ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन एंड हेल्प्स इन सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन. अगर कॉलुमनर या क्यूबॉइडल एपिथेलियम में सीलिया प्रेजेंस है तो उसे सीलिया प्रेजेंस है फ्री सरफेस में तो उसे हम लोग कहेंगे सिलिएटेड एपिथेलियम. Their function is to move particles or mucus in a specific direction over the epithelium. सीलिया का फंक्शन क्या है? ये पार्टिकल और म्यूकस को उसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करते हैं. They are mainly present on the inner surface of hollow organs like bronchioles and fallopian tube. ये कहाँ होते हैं? inner surface में hollow organs के, जैसे कि bronchioles हो गए, fallopian tube हो गई. Some of the columnar or cuboidal cells get specialized for secretion are called glandular epithelium. कुछ columnar या cuboidal cells होते हैं वो एक specialized फॉर्म में आ जाते हैं for the sake of secretion और उसे हम लोग कहते हैं glandular epithelium. They are mainly of two types. Unicellular consistent of isoglandular cells, गॉबलेट सेल्स ऑफ द एलिमेंट्री कलर. यूनिसेलुलर में क्या होता है? आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं. इसका एग्जांपल है गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कलर. एंड मल्टी सेलुलर कंसिस्टेंस ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स और मल्टी सेलुलर में क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड में. ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम का एग्जांपल है. ये यूनिसेलुलर का है, ये मल्टी सेलुलर का. मल्टी सेलुलर में क्लस्टर्स ऑफ सेल्स हैं और यूनिसेलुलर ग्लैंड में आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स हैं. On the basis of the mode of pouring of the secretion, glands are divided into two categories, namely exocrine and endocrine. ये secretion अपना कैसे करते हैं उस basis में gland दो categories में divided है, exocrine and endocrine. Exocrine glands secrete mucus, saliva, earwax, oil, milk, digestive enzyme and other cells products. Exocrine क्या secrete करता है? Mucus, saliva, earwax, oil, digestive enzyme, milk and other cells products. These products are released through ducts or tube. और ये किससे release होते हैं? ducts और tube से. In contrast, endocrine gland do not have ducts. endocrine gland के पास कोई ducts नहीं होती. Their products called hormone are secreted directly into the fluid bathing the gland. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में डक्स होती है और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कोई डक्स नहीं होती. उनके प्रोडक्ट्स को हम लोग हार्मोन्स कहते हैं जो कि डायरेक्टली सिक्रीट होते हैं हमारी फ्लूइड में. कंपाउंड एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर, मल्टी लेयर्ड ऑफ सेल एंड थर्स हैज limited role in secretion and absorption.
Their main function is to provide protection against chemical and mechanical stresses. They cover the dry surface of the skin, the moist surface of the buccal cavity, pharynx, inner lining of ducts or salivary glands, and of pancreatic duct. कंपाउंड एपिथेलियम मल्टीलेयर सेल्स की बनी होती है, इसलिए इसका लिमिटेड रोल है सिक्रीशन एंड ऑब्जॉर्प्शन में. इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस के अगेंस्ट, और ये ड्राई सरफेस स्किन का कवर करती है. द मॉइस्ट सरफेस ऑफ द बकल कैविटी, फेरिंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड एंड ऑफ पैनक्रियाटिक डक्ट्स. ये आपका डायग्राम है कंपाउंड एपिथेलियम का. मल्टीलेयर्ड है, इसमें क्यूबाइडल भी है, ये स्क्वैमस है. All cells in epithelium are held together with little intercellular material. In nearly all animal tissue, spliced junction provide both structure and functional link between its individual cells. एपिथेलियम के सेल्स कैसे होते हैं, एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं विद सम इंटरसेलुलर मटेरियल, और एनिमल टिश्यू में कुछ स्पेशलाइज्ड जंक्शन होते हैं जो कि बोथ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल लिंक प्रोवाइड करते हैं बिटवीन इट्स इंडिविजुअल सेल. 3 types of cell junction are found in the epithelium and other tissue. These are called tight junction, tight, adhering and gap junction. Tight junction क्या करता है, ये substances को stop करता है from leaking across the tissue. Adhering cementing करता है to keep neighboring cells together. Gap junction facilitate the cell to communicate with each other by connecting cytoplasm at adjoining cell for rapid transfer of ions, small molecules and sometimes big molecules. Gap junction सेल के बीच में communication facilitate करता है by connecting their cytoplasm of adjoining cells, ताकि रैपिड ट्रांसफर हो सके आयंस का, कोई कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स और कुछ समथिंग बिग मॉलिक्यूल्स का. कनेक्टिव टिश्यू. Connective tissue are the most abundant and widely distributed in the body. Connective tissue कैसे होते हैं, most abundant और widely distributed होते हैं हमारी body में. They are named connective tissue because their special function of linking and supporting other tissue organs of the body. इनको connective tissue इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका special function है linking and supporting other tissue organs of the body. They range from soft connective tissue to specialized connective tissue, which include cartilage, bone, adipose and blood. और क्या क्या इसमें आता है, cartilage आता है, bone आता है, adipose and blood आता है. In all connective tissue except blood, the cell secrete fibers of structure proteins called collagen और elastin. सब connective tissue में सेल फाइबर सिक्रीट करता है जो स्ट्रक्चर प्रोटीन्स की बनी होती है, जिसे हम लोग कहते हैं कोलेजन और इलास्टिन में, with the exception of blood. The fiber provide strength, elasticity and flexibility to the tissue. ये फाइबर क्या कहती है, strength, elasticity and flexibility टिश्यू को प्रोवाइड करती है. These cells also secrete modified polysaccharide which accumulate between cell and fibers and act as matrix. ये सेल और क्या सिक्रीट करते हैं, modified polysaccharide सिक्रीट करते हैं जो कि सेल और फाइबर के बिटवीन में एज अ मैट्रिक्स एक्ट करता है. Connective tissue classified into 3 types: loose connective tissue, dense connective tissue and specialized connective tissue. Loose connective tissue has cells and fiber loosely arranged in a semi-fluid ground tissue. For example, areolar tissue present beneath the skin. Loose connective tissue में क्या होता है, जो cells और fibers होते हैं वो लूजली अरेंज होते हैं सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस में, और इसका एग्जांपल है एरियोलर टिश्यू जो कि हमारी स्किन के नीचे प्रेजेंट है. Often it serves as a support framework for epithelium. ये एज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क भी एपिथेलियम के लिए काम करता है. It contains fibroblast cells that produce and secrete fibers, macrophages and mast cell. Areolar tissue fibroblast cells contain करता है जो कि प्रोड्यूस करते हैं, सिक्रीट करते हैं फाइबर्स और मैक्रोफाजेस एंड मास्ट सेल्स. Adipose tissue is another type of loose connective tissue located mainly beneath the skin. Adipose tissue भी loose type tissue का पार्ट है, ये भी स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है. The cells of this tissue are specialized to store fat. ये इनके सेल किस लिए स्पेशलाइज होते हैं, फैट स्टोर करने के लिए. The excess of nutrients which are not used immediately are converted into fats and stored in the
टिश्यू। जो एक्सेस न्यूट्रिएंट्स होता है हमारी बॉडी में, जो उस समय इमिडिएटली यूज़ के लिए नहीं होता, वो फैट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और स्टोर्ड हो जाता है एडिपोज टिश्यू में। Fibers and fibroblasts are compactly packed in the dense connective tissue. Dense connective tissue में जो fibers होते हैं और फिब्रोब्लास्ट होते हैं वो compactly packed होते हैं. Orientation of fibers show a regular or irregular pattern and are called dense regular and dense irregular tissue. In dense regular connective tissue, the collagen fibers are present in row between many parallel bundles of fiber. Dense रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, जो कोलेजन फाइबर्स होती हैं वो रोज में प्रेजेंट होती है बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स. टेंडन which attach skeletal muscle to bones and ligaments which attached one bone to another what are example of this tissue. dense regular का क्या एग्जाम्पल है, टेंडन्स एंड लिगामेंट. टेंडन क्या करता है, स्केलेटल मसल को बोन से ज्वाइन करता है, लिगामेंट क्या करता है, बोन टू बोन ज्वाइन करता है. Dense irregular connective tissue has fibroblasts and many fibers, mostly collagen, are oriented differently. Dense irregular में क्या होता है, जो फिब्रोब्लास्ट होते हैं, फाइबर्स होते हैं, मोस्टली कोलेजन, वो इरेगुलरली अरेंज होते हैं, मतलब डिफरेंट मैनर में अरेंज होता है. दिस टिश्यू प्रेजेंट इन द स्किन, और ये टिश्यू स्किन में प्रेजेंट होता है. कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड आर वेरियस टाइप ऑफ स्पेशलाइज. ये टिश्यू स्किन में प्रेजेंट होता है. अब हम लोग आते हैं स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में. कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू. द इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉफ्ट एंड प्लायेबल एंड रेसिस्ट कंप्रेशन. सेल्स ऑफ दिस टिश्यू chondrocytes are enclosed in small cavities within the matrix secreted by them. जो इंटरसेलुलर मटेरियल होता है कार्टिलेज का वो सॉलिड होता है, प्लायेबल होता है एंड रेसिस्ट कंप्रेशन, कंप्रेशन को रेसिस्ट करता है. सेल्स ऑफ दिस टिश्यू जिसे हम लोग कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट, वो एक स्मॉल कैविटी में क्लोज्ड होते हैं विद इन द मैट्रिक्स सिक्रेटेड बाय देम. मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रो आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन एडल्ट. बहुत से कार्टिलेज होते हैं हमारे वर्टिब्रेट्स में, एम्ब्रो में, जो कि बड़े होने पर बोन से रिप्लेस्ड हो जाते हैं. Cartilage present in the tip of nose, outer ear joints, between adjacent bone of the vertebral column, limbs and hands and other. Cartilage कहाँ कहाँ present होता है, nose की tip में, outer ear joints में, between adjacent bone of the vertebral column, limbs में, hands में, in adult. Bone have a hard and non-pliable ground substance rich in calcium salts and collagen fiber which give बोन इट्स स्ट्रेंथ. बोन्स कैसी होती है, हार्ड होती है, नॉन प्लायबल होती हैं, ग्राउंड सब्सटेंस उनका कैल्शियम में रिच होता है और कोलेजन फाइबर में रिच होता है, जो कि बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. इट्स मेन टिश्यू डेट प्रोवाइड स्ट्रक्चर फ्रेम ऑफ द बॉडी. ये क्या करती है, हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर फ्रेम प्रोवाइड करती है. बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यू एंड ऑर्गन, और ये क्या करती है, सॉफ्टर टिश्यू ऑर्गन को सपोर्ट करती है और प्रोटेक्ट करती है. द बोन सेल्स ऑस्टियोसाइट, बोन सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्टियोसाइट, आर प्रेजेंट इन द स्पेसेस कॉल्ड लैक्यूने. कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक स्पेसेस में जिसे हम लोग कहते हैं लैक्यूने. लिम्ब बोन्स सच एज द लॉन्ग बोन्स ऑफ द लेग्स सर्व वेट बियरिंग फंक्शन. जो हमारी लिम्ब बोन्स होती है, जैसे लॉन्ग बोन्स हो गई लेग्स की, वो वेट बियरिंग फंक्शन परफॉर्म करती है क्योंकि वो हमारी पूरी बॉडी का वेट अपने ऊपर लेती हैं. दे ऑल्सो इंटरेक्ट विद स्केलेटल मसल अटैच टू देम टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट. और बोन हमारी स्केलेटल मसल से भी ज्वाइंट होती है ताकि हमारी बॉडी में मूवमेंट आ सके. द बोन मैरो इज सम बोन्स इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल. बोन मैरो कुछ बोन्स में एज अ साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स काम करता है. Blood is a fluid connective tissue containing plasma, red blood cell, white blood cell and platelet. Blood एक fluid connective tissue है जिसमें प्लाज्मा होता है, RBC होते हैं, WBC होते हैं, प्लेटलेट्स होती हैं. It is the main circulating fluid that helps in the transport of various substances. ये क्या है, main circulating fluid है जो बहुत से ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है.
अब हम लोग आते हैं मसल टिश्यू में. ईच मसल इज मेड अप ऑफ मैनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर अरेंज इन पैरेलल रेस. ईच मसल किससे बनी होती है? लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर से, जो कि पैरेलल अरेज में अरेंज होते हैं. दीज फाइबर्स आर कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस फाइन फिब्रिल्स कॉल्ड मायोफिब्रिल. और ये फाइबर किससे बने होते हैं? बहुत ही सारे फाइन फिब्रिल्स है, जिसे हम लोग कहते हैं मायोफिब्रिल्स. मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट, shorten in response to stimulation, then relax, lengthen and return toward their uncontracted state in a coordinate fashion. मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अगर उनको कोई स्टिमुलेशन मिलता है, और फिर वापस रिलैक्स कर जाते हैं और अपने अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में इन अ कोऑर्डिनेट फैशन. Their action moves the body to adjust to the changes in the environment and to maintain the position of the various parts of the body. In general, muscles play an active role in movement of the body. Muscle किस में active role play करती है? Movement of the body में. Muscle are of three types: skeletal, smooth and cardiac. Skeletal tissue is closely attached to the skeletal bones. In a typical muscle such as bicep, striated skeletal muscle fibers are bundled together in a parallel fashion. Skeletal muscle tissue हम लोग को किससे क्लोजली अटैच होते हैं? स्केलेटल बोन से, जैसे कि बाइसेप्स में स्ट्रिएटेड स्केलेटल मसल फाइबर्स are bundled together in a parallel fashion. A sheet of tough connective tissue includes several bundles of muscle fibers. एक शीट होती है जो कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, जो बहुत सारे बंडल फाइबर को इनक्लोज करती है. The smooth muscle fiber tapers at both ends, fusiforms and do not show striation. जो स्मूथ मसल फाइबर्स होती है वो बोथ एंड में टेपर्स होती हैं और इसीलिए वो कोई स्ट्रिएशन शो नहीं करती. सेल जंक्शन होल्ड देम टुगेदर एंड दे आर बंडल्ड टुगेदर इन अ कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रेट. सेल जंक्शन इनको होल्ड करते हैं और ये एक बंडल्ड में है एक साथ, जिसे हम लोग कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रेट. The wall of internal organs such as blood vessel, stomach and intestine contain this type of muscle. जैसे internal organs की walls में ये muscles होती है, जैसे कि blood vessel, stomach, intestine and etc. Smooth muscle जो होती है involuntary as their function cannot be directly controlled. We usually are not able to make it contract merely by thinking about it as we can do it with skeletal muscle. हम लोग इन्हें अपनी हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जैसे हम लोग स्केलेटल मसल को कर सकते हैं, इसलिए ये इनवॉलेंट्री होती है और स्केलेटल मसल वॉलेंट्री मसल्स होती है. कार्डियक मसल्स is a contractile tissue present only in heart. Cell junction fuse the plasma membrane of cardiac cells and make them stick together. कार्डियक मसल हम लोगों को कहाँ मिलती है? सिर्फ हार्ट में मिलती है, और जो सेल जंक्शन होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्यूज कर देते हैं कार्डियक मसल के और उन सबको एक दूसरे के साथ स्टिक कर देते हैं. Communication junction intercalated as some fusion points allow the cell to contract as a unit. जो इसमें कम्युनिकेशन जंक्शन होता है जिसे हम लोग कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क, वो फ्यूजन पॉइंट्स में क्या करता है? जो मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराने में हेल्प करता है, वो भी एक यूनिट में, एज अ यूनिट. When one cell receives a signal to contract, its neighbor cell are also stimulated to contract. जब एक सेल सिग्नल रिसीव करता है कॉन्ट्रैक्शन का, तो जो सारे नेबर्स में होते हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. ये आप पहला वाला है स्केलेटल मसल का जो स्ट्रिएटेड होती हैं, दूसरा वाला है स्मूथ मसल का, और ये कार्डियक मसल, ये है जंक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल, इसे हम लोग कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क. ये स्ट्रिएशन, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस तो सब में प्रेजेंट होता है और इसमें भी हम लोग को स्ट्रिएशन दिखता है, इसमें कोई स्ट्रिएशन नहीं दिखता, ये इनवॉलेंट्री है. स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल वॉलेंट्री और कार्डियक मसल भी हमारी इनवॉलेंट्री है. Neural tissue. Neural tissue exerts the greatest control over the body responsiveness to changing condition. Neurons, the unit of neural system are excitable cell. Neurons कैसे होते हैं? Excitable cells होते हैं जो कि unit है neural system के. The neurological cell which constitute the rest of the neural system protect and support neuron. जो न्यूरोलॉजिकल सेल होते हैं जो रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम
में कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, वो उनका काम क्या होता है, प्रोटेक्ट और सपोर्ट करना न्यूरॉन को. न्यूरोग्लियम मेकअप मोर देन 1/2 of the volume of neural tissue in our body. When a neuron is suitably stimulated, an electric disturbance is generated which swiftly travels along its plasma membrane. Arrival of the disturbance at the neuron endings or output zone triggers events that may cause stimulation or inhibition of adjacent neurons and other cells. तो यहाँ पे हमारा एनिमल टिश्यू वाला पार्ट खत्म होता है, जिसमें हम लोगों ने मसल टिश्यू, न्यूरल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू ये सब कवर किया है. हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कॉकरोच कवर करेंगे, फिर उसके नेक्स्ट पार्ट में फ्रॉग. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड फॉर द NCERT highlight you have to follow my telegram channel. Thank you.